کل حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% جو کیمرے ہیں سیف سٹی کے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میاں شہباز شریف کا ستا 30% کیمرے چل نہیں رہے، تو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا گردانتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسے اداروں کا اور ڈپارٹمنٹس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی. تو جو انفراسٹرکچر ہم بنا گئے تھے انہوں نے اس میں اضافہ تو خیر کیا کرنا تھا، یہ اسے مینٹین ہی نہیں کر سکے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جہاں تک اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا تعلق ہے تو وہ براہ راست اس کا تعلق مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ہے. جب مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بھوک اور غربت بڑھے گی تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا. اگر سارے ای وی ایم کا بہت ذکر ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ای وی ایم استعمال کی جائے گی تمام انتخابات میں. اب جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ وزارت سائنس نے ای وی ایم مہیا کرنے سے معذرت کر دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ای وی ایم ہم نے کہا ہے ڈے لائٹ رابری کا اگلا پروگرام ہے اور اگلا الیکشن لوٹنے کا منصوبہ ہے پی ٹی آئی کا. اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں چھوٹی بڑی ریجنل یا نیشنل وہ اکٹھی ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان سب کا اس بات پر کنسنسس ہے کہ ای وی ایم جو ہے اس پہ الیکشن ہم نہیں مانتے. دنیا کے بڑے ملکوں میں تجربہ ناکام ہوا ہے اور جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ ای وی ایم کو یوز نہیں کر رہی. تو انہوں نے کون سی نئی ٹیکنالوجی نکالی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن کرائے. انہوں نے 37 آبجیکشنز کیے ہیں، گورنمنٹ کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں دے سکی. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی عدالت کے علاوہ قانون کی عدالت میں بھی جانا چاہیے اور وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. یہ جو سو کالڈ الیکشن ریفارمز ہیں یہ بھی چیلنج ہونی چاہیے. اور جو نیب کا 2 اور 3 امینڈمنٹ کا بل ہے جو کہ نیب کو ٹوٹل کنٹرول کرنے کا پلان ہے گورنمنٹ کا کہ حکومت جس کی بھی ہوگی نیب جو ہے وہ اس کے اشاروں پر چلا کرے گی، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اسے بھی چیلنج کیا جانا چاہیے اور میری اطلاع ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے گا. اچھا فیض صاحب، چودھری سرور صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنوایا اور شہباز صاحب سے میرے اختلافات صاف پانے کی وجہ سے ہوئے تھے. تو کیا کہتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ چودھری سرور صاحب کے خلاف گل نہیں کر رہے، انہوں نے ساڑھے ذاتی تعلقات. اچھا مشیر احتساب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں جو انہیں عہدہ دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا، اور اب جو نئے مشیر احتساب آئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیں اگر احتساب شفاف ہوتا تو وہ بھی سب کو نظر آتا. تو احتساب کوئی نہیں تھا، یہ محض انتقام تھا. ویسے پاکستان میں احتساب کا نعرہ ہر دور میں لگا ہی انتقام لینے کے لیے ہے. تو یہ بدترین سیاسی انتقام تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں لیا گیا ہے اور لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہاں عدالتیں بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، میرے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 معزز جج، سینئر جج 85 صفحے کا فیصلہ لکھ چکے ہیں. اس کے باوجود ہم یہاں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، آتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا اس لیے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ ان کے سارے مخالف کسی طرح فنا ہو جائیں. اب ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی کام کریں گے تو اس میں نحوست آئے گی. عمران خان صاحب کے ہر کام میں نحوست پڑتی ہے کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو الزام لگاتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اپنے اندر موجود ہیں. اب ایک ایک کر کے وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، وہ سامنے آنا ہی تھا. تو اچھا ہے، ذرا تبدیلی کے مزے سب لے لیں. جنہیں تبدیلی کا بہت شوق تھا اور جو بڑے شوق اور ذوق سے اس 2 نمبر تبدیلی کو لے کے آئے تھے، انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اصل میں تباہی ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کر کے اور اس کے اداروں کو رکھ دی ہے. کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا مسلسل پاکستان میں 3.5 سال سے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور حکومت کا جو سامنے کردار بھی ہے وہ بھی ہے. کیا اپوزیشن اس حوالے سے اپنے فرائض انجام دے سکی ہے یا وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکی جو اسے کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، میں اپوزیشن کے مؤثر کردار سے مطمئن نہیں ہوں. سیاسی حلقوں میں بڑی بات گشت ہے کہ لاہور کے میئر کے لیے خواجہ سعد رفیق بڑا بہترین کینڈیڈیٹ ہے. اگر آپ کو پارٹی نامزد کرتی ہے تو کیا آپ لاہور کے میئر کے لیے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے 15 مئی کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا.
अच्छा खान साहब, वज़ीर इमरान खान की जो हालिया तकरीर थी उसमें उन्होंने फिर वही तड़ी लगाई जो कंटेनर पे वो लगाते थे कि सबको अंदर करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं वजारत उसमें पे ना रहा। तो आप बताइएगा कि अब उन्होंने तड़ी किस पर लगाई है, चूंकि सारे तो जो है वो जेलों में गए हैं, आप समेत, और केसेस भी चल रहे हैं, तो अब जो है वो किस पे उन्होंने जो है ये बात की है? मेरा ख्याल है इमरान साहब को स्मेल आ रही है, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने बोया और उनके साथियों ने, वो काटने का वक्त उनका आ गया है। तो जब काटने का वक्त आ जाता है तो फिर आदमी इस तरह की वैकी बातें करता है। उनका ये ख्याल है कि अगर वो फारिग हुए तो लोगों का हजूम उनके साथ आएगा, या वो फिर कंटेनर पे चढ़ेंगे और फिर मीडिया की डार्लिंग बनेंगे, या उनको वो सपोर्ट की जाएगी जिसके नतीजे में मीडिया 350 लोगों के इज्तिमा को 24 घंटे दिखाएगा। तो ये मौका बार बार नहीं आता, ये जन्नत बार बार नहीं मिलती। वो अपनी बस मिस कर चुके हैं, उन्हें वापस ही लौटना है और उन्हें ज़मीन पर ही आना है। आसमान से हर एक को ज़मीन पे आना होता है, उनके भी ज़मीन पे आने का वक्त हो गया है। अब ये धमकियां जो हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और इसी तरह जो वो ये चाहते हैं कि फिर इंतकाम का रोड रोलर चले और वो अपने मुखालफिन को फिर बुलडोज करें, इसमें भी उन्हें नाकामी हो। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। मार्च होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने अलग तरीके का ऐलान किया हुआ था, पीडीएम का जो इजलास हुआ था उस पर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। तो क्या मार्च दबंग होने जा रहा है, वो मार्च से कुछ हासिल भी होगा? असल जो मकासद है वो क्या है? हर लॉन्ग मार्च से कुछ ना कुछ निकलता है, कोई लॉन्ग मार्च कभी ज़ाया नहीं होता। जब जजिस बहाली तहरीक चल रही थी तो पहला लॉन्ग मार्च जब किया था तो हम वहाँ गए थे और वहाँ चंद घंटे रुक के वापस आए थे, वो भी ज़ाया नहीं हुआ था। और उसके नतीजे में ही दूसरा फैसला कौन लॉन्ग मार्च हुआ था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि, और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को अपनी सरगर्मियों में इजाफा करना चाहिए और सड़क के ऊपर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग हुकूमत से सख्त तंग हैं उसकी पॉलिसियों से। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपोजिशन के बारे में भी कहते हैं कि वो इफ़ेक्टिव अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। अब भाई हम तो जेलें काट आए हैं, जुर्म बेगुनाही में अपने कारोबार भी तबाह करवाए हैं, लंबी लंबी जेलें भी काटी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि निजात मिले लोगों को इस नहुसत से जो कौम पे मुसल्लत की गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये मरहला आए तो हम तवक्को करते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं अब वो न्यूट्रल रहेंगे और माजी की तरह कोई जानिबदाराना किरदार अदा नहीं करेंगे। बहुत मेहरबानी। बना रहा था। अच्छा वो चल गया, वही यार मुझे भी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज कही है, ये बात हम एक तवील अरसे से कह रहे हैं। लोग जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में करप्शन रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, और करप्शन हर सतह पे है। ये नहीं कि निचली सतह पे है, बल्कि आला सतह पे करप्शन में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अकरबा परवरी की गई है, अपने लोगों को नवाजा गया है। ख़ास तौर पे जो BTI के डोनर्स थे या सपोर्टर्स थे उनको बहुत बुरी तरह नवाजा गया है। तो अब तो ये जो करप्शन मंत्रा था ये पहले ही पिट चुका था, अब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है ये हुकूमत, और दूसरों को चोर कहने वाले दरअसल खुद चोर निकले। अच्छा खान साहब, लाहौर की जो सूरत हाल है, कराची में जिस तरह दहशत गर्दी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी वारदातें बढ़ गई हैं। हालिया जो वाक़या अनारकली का हुआ, लेकिन राहज़नी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कल हमजा साहब कह रहे थे कि 30% जो कैमरे हैं सेफ सिटी के, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मियाँ शहबाज शरीफ का था। 30% कैमरे चल नहीं रहे, तो इसकी आप बुनियादी वजह क्या गर्दानते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जैसे अदारों का और डिपार्टमेंट्स का कोई वाली वारसी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पीछा करने वाला नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो नज़र नहीं आती। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना गए थे, इन्होंने उसमें इजाफा तो खैर क्या करना था, ये उसे मेंटेन ही नहीं कर सके, और हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। और जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का ताल्लुक है तो वो बराह रास्त उसका ताल्लुक महंगाई और बेरोज़गारी के साथ है। जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, भूख और गुर्बत बढ़ेगी तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। अच्छा ये EVM का बहुत जिक्र है, मुसलसल कहा जा रहा है कि EVM इस्तेमाल की जाएगी तमाम इंतखाबात में। अब जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ पे वजारत साइंस ने EVM मुहैया करने से माजरत कर दी है।
देखिए बात यह है कि EVM हमने कहा है डे लाइट रॉबरी का अगला प्रोग्राम है और अगला इलेक्शन लूटने का मंसूबा है PTI का। इसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें, छोटी बड़ी, रीजनल या नेशनल, वो इकट्ठी हैं या एक दूसरे से अलग हैं, उन सब का इस बात पर कंसेंसस है कि EVM जो है उस पर इलेक्शन हम नहीं मानते। दुनिया के बड़े मुल्कों में तजुर्बा नाकाम हुआ है और जो बड़ी जमहूरियतें हैं वो EVM को यूज़ नहीं कर रही, तो इन्होंने कौन सी नई टेक्नोलॉजी निकाली है। दूसरी बात ये है कि आईनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो इलेक्शन कराए। उन्होंने 37 ऑब्जेक्शंस किए हैं, गवर्नमेंट किसी एक एतराज़ का जवाब नहीं दे सकी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों को अवामी अदालत के अलावा कानून की अदालत में भी जाना चाहिए और वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये भी चैलेंज होनी चाहिए और जो नैब का 2nd और 3rd अमेंडमेंट का बिल है जो कि नैब को टोटल कंट्रोल करने का प्लान है गवर्नमेंट का कि हुकूमत जिसकी भी होगी नैब जो है वो उसके इशारों पर चला करेगी, ये काबिल कबूल ही नहीं है। इसे भी चैलेंज किया जाना चाहिए और मेरी इतला है कि इसे चैलेंज किया जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, चौधरी सरवर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनवाया, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनवाया और शहबाज साहब से मेरे इख्तलाफात साफ पानी की वजह से हुए थे, तो क्या कहते हैं उनके इस बयान को? चौधरी सरवर साहब के खिलाफ गल नहीं करनी, उन्होंने साढ़े ज़ाती ताल्लुकात। अच्छा, मुशीर एहतसाब जो हैं वो तब्दील हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि उन्होंने अपने टेन्योर में जो उन्हें ओहदा दिया था उसके साथ उन्होंने इंसाफ किया और अब जो नए मुशीर एहतसाब आए हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या देखिए, अगर एहतसाब शफाफ होता तो वो भी सबको नज़र आता, तो एहतसाब कोई नहीं था, ये महज इंतकाम था। वैसे पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हर दौर में लगा ही इंतकाम लेने के लिए है, तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम था जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लिया गया है और लिया जा रहा है, जिसके नतीजे में हम यहाँ अदालतें भुगत रहे हैं। आप देखें ना, मेरे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़िज़ जज, सीनियर जज 85 सफ़े का फ़ैसला लिख चुके हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पे पेशियाँ भुगत रहे हैं, आते हैं और लोगों को बुलाया जाता है और सारा इसलिए कि ये एक इमरान खान साहब की सोच ये है कि उनके सारे मुखालिफ किसी तरह फना हो जाएं। अब उनका अलमिया ये है कि वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब आप बदनीयती की बुनियाद पे कोई काम करेंगे तो उसमें नहुसत आएगी। इमरान खान साहब के हर काम में नहुसत पड़ती है क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लोगों को जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सारी चीज़ें उनके अपने अंदर मौजूद हैं। अब एक एक करके वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, वो सामने आना ही था। तो अच्छा है, ज़रा तब्दीली के मज़े सब ले लें जिन्हें तब्दीली का बहुत शौक़ था और जो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से इस 2 नंबर तब्दीली को लेके आए थे, उन्हें भी पता लग गया है कि ये तब्दीली जो है ये असल में तबाही है और इसने पाकिस्तान को तबाह करके और इसके अदारों को रख दी है। कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छा, मुसलसल पाकिस्तान में 3.5 साल से बहुत ज़्यादा महंगाई है और हुकूमत का जो सामने किरदार भी है वो भी है। क्या अपोजिशन उस हवाले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकी है या वो उस तरह से डिफेंड कर सकी जो उसे करना चाहिए था? नहीं, मैं अपोजिशन के मौसर किरदार से मुतमईन नहीं हूँ। सियासी हलकों में बड़ी बाज़गश्त है कि लाहौर के मेयर के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक बड़ा बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर आपको पार्टी नामज़द करती है तो क्या आप लाहौर के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है 15 मई की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा। अच्छा खान साहब, वज़ीर इमरान खान की जो हालिया तकरीर थी उसमें उन्होंने फिर वही तड़ी लगाई जो कंटेनर पे वो लगाते थे कि सबको अंदर करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं वज़ारत उज़्मा पे ना रहा तो आप बताइएगा कि अब उन्होंने तड़ी किस पर लगाई है। चूँकि सारे तो जो है वो जेलों में गए हैं, आप समेत और केसेस भी चल रहे हैं, तो अब जो है वो किस पे उन्होंने जो है ये बात की है? मेरा ख्याल है इमरान साहब को स्मेल आ रही है, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने बोया और उनके साथियों ने, वो काटने का वक्त उनका आ गया है। तो जब काटने का वक्त आ जाता है तो फिर आदमी इस तरह की बहकी बातें करता है। उनका ये ख्याल है कि अगर वो फारिग हुए तो लोगों का हजूम उनके साथ आएगा या वो फिर कंटेनर पे चढ़ेंगे और फिर मीडिया की डार्लिंग बनेंगे या उनको वो सपोर्ट की जाएगी, जिसके नतीजे में मीडिया 350 लोगों के इज्तिमा को 24 घंटे दिखाएगा। तो ये मौका बार बार नहीं आता, ये जन्नत बार बार नहीं मिलती। वो अपनी बस मिस कर चुके हैं, उन्हें वापस ही लौटना है और उन्हें ज़मीन पर ही आना है। आसमान से हर एक को ज़मीन पे आना होता है, उनके भी ज़मीन पे आने का वक्त हो गया है। अब ये धमकियां जो हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह जो वो ये चाहते हैं कि एक फिर इंतकाम का रोड रोलर चले
اور وہ اپنے مخالفین کو پھر بلڈوز کریں، اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی۔ اچھا خان صاحب، آخری سوال کا جواب دیجیے گا، مارچ ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے علیحدہ طریق کا اعلان کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تو کیا مارچ دبنگ ہونے جا رہا ہے؟ وہ مارچ سے کچھ حاصل بھی ہوگا؟ اصل جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر لانگ مارچ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، کوئی لانگ مارچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی تو پہلا لانگ مارچ جب کیا تھا تو ہم وہاں گئے تھے اور وہاں چند گھنٹے رک کے واپس آئے تھے، وہ بھی ضائع نہیں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں دوسرا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوا تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور سڑک کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ لوگ حکومت سے سخت تنگ ہیں اس کی پالیسیوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ افیکٹو اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں۔ اب بھائی ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں، جرم بے گناہی میں اپنے کاروبار بھی تباہ کروائے ہیں، لمبی لمبی جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ نجات ملے لوگوں کو اس نحوست سے جو قوم پہ مسلط کی گئی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اب وہ نیوٹرل رہیں گے اور ماضی کی طرح کوئی جانبدارانہ کردار ادا نہیں کریں گے۔ بہت مہربانی۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔